Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, as I have mentioned in my first introductory lecture, that this particular program will be split up into two tracks, and I will be simultaneously delivering the lectures for track 1 as well as track 2. The track 2 program is based upon the hands-on instructions, and using these hands-on instructions you will be conducting your labs. So आज हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं track 2 को भी, और I'll be talking about hypertext markup language, HTML, and this is the part 1 of the HTML topic. So I picked up the hands-on material from www.w3schools.com, where they have provided excellent exercise material. I will strongly recommend you to visit this website, and in the website you will find the tutorials, and in the tutorials of HTML you should be able to perform certain exercises, certain online exercises. यानी कि आपने करना क्या है, आपने वहाँ पर करना ये है कि जो tutorials हैं, once you go there then there is a try it by yourself. आपने try it by yourself को click करना है. Then you will find out on the left side window, you will find out the text, HTML code, and on the right side the interpretation. तो बेस्ट वे इज के यू मेक सर्टन चेंजेस, वो चीज़ें जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ, यू यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मेक सर्टन चेंजेस, एंड देन ऑनलाइन you just, as soon as you press the submit button, you will see the impact for that, and that is one recommendation. Otherwise, if you want to do it offline on your computer, on your laptop, then I will give you the detailed procedure during this lecture to perform the exercises and to learn that. You are not supposed to learn it by heart. Okay, so best way is you, whatever I teach, you just open up and create the document and perform certain exercises. किसी चीज़ को भी ज़बानी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको याद करने की ज़रूरत है. Okay, so I'm just going to start the lesson. The topic that I'm planning to cover in this lectures will be introduction to HTML, then I will talk about HTML elements, editor, some HTML basics, attributes, headings, paragraphs, text formatting, comments, and hyperlinks. And if I find time, then I might include the topic of headings also in this particular lecture. So start करते हैं introduction से. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. HTML is a markup language. Okay, अब markup क्या है? A markup language is a set of markup tags. Markup tags क्या है? The tags describe the document contents. यानी HTML documents contain HTML tags and plain text. HTML documents are also called the web pages. यानी कि जो आपका web page होता है, it is based upon HTML, and it contains two types of components. Component number 1, HTML tags, and component number 2 is the plain text. टैग्स बताते हैं कि आपके टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट करना है. किसे बताते हैं? ये बताते हैं ब्राउजर्स को. आई गिव यू द डिटेल्स. सो वट एवर विल बी डूइंग इट टू फैसिलिटेट द ब्राउजर्स, द सर्च इंजन्स, and the people who would like to extract the information from your web page or from the information that you wanted to share among the rest of the world. Okay. HTML markup tags are usually called HTML tags. In short, उसको हम कहते हैं HTML tags. So HTML tags are क्या चीज़ है? होता क्या है? These are called the keywords. और कीवर्ड्स हैं तो उसको आपको नाम असाइन करना है, जिसको हम कहते हैं टैग नेम्स.
सराउंडेड बाय द एंगल ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट ना, लेस देन और ग्रेटर देन, इसको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। तो वट एवर यू राइट इनसाइड द एंगल ब्रैकेट्स आर द कीवर्ड्स, ये नाम है जो आपने, आप कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड वेरिएबल नेम्स होते हैं, जो पहले से पहले डिफाइन किए हुए होते हैं सिस्टम के अंदर, जिनको आप यूज करते हैं। बट देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स और सर्टेन वेरिएबल नेम्स दैट यू कैन डिफाइन इट बाय योरसेल्फ। लेकिन जो टैग्स हैं दोज आर प्री डिफाइंड टैग, लेकिन जो इसकी वैल्यूज है वो आपने असाइन करनी है। आप चाहते हैं कि आपकी प्रोवाइड की हुई इंफॉर्मेशन को ब्राउजर कैसे इंटरप्रेट करे, सर्च इंजन कैसे इंटरप्रेट करे, तो ऐसी सूरत में उन टैग्स की मदद से आप अपने टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे, टेक्स्ट फॉर दैट यू वांट टू प्रेजेंट ऑन योर वेब पेज। सो HTML टैग्स आर नॉर्मली कम्स इन ए पेयर, जिसमें आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आपका एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एंगल ब्रैकेट्स में P इज टैग नेम, it's a predefined means paragraph. I'll come back to the paragraph in few minutes time, but अभी हम यही कहते हैं कि P stands for paragraph. And then /P. अब ये /P और इस P में क्या फर्क है? The first tag in the pair is called start tag and the second tag in the pair is called end tag. The end tag is written just like the start tag, जैसे कि आपने देखा, लेकिन it is preceded with a /. ये distinguish करता है कि यहाँ पे आपका tag जो है वो end हो गया है। Start and end tags are also called opening tag and closing tags. So आपके पास एक टैग है जिसमें आपका टैग नेम है, इसके दरमियान में जो भी चीज है वो कंटेंट्स हैं, ये वो कंटेंट्स हैं जिसको ये टैग डिफाइन कर रहा है। एंड देन एंड ऑफ द डेफिनेशन, जो चीज आपने डिफाइन की उस चीज को आपने एंड किया। सो यू हैव अ टैग नेम, देन यू हैव अ कंटेंट्स एंड देन यू हैव द एंड ऑफ द टैग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। HTML एलिमेंट्स। HTML elements, in HTML most elements are written with start tags. For example, जैसा मैंने आपको बताया पैराग्राफ P tag and end with // tag, यानी कि अब मैं आपको जो टैग नेम्स हैं उसकी मदद से हम आपको बता रहे हैं कि HTML elements, और P stands for paragraph. So this is a paragraph and /P, this is end of the P tag. So P tag is the tag name that describes the paragraph. P is an element. This is an HTML element. This is also called, जब इस एलिमेंट को आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा। अभी मैं इसके आगे फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा कि HTML के फर्दर कंपोनेंट्स क्या हैं। अभी हम HTML के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर हमने बात की थी कि स्टार्ट टैग के बाद हमारे पास क्या होता है, कंटेंट्स, और कंटेंट्स क्या है यहाँ पे, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ सेंटेंस एंड दिस इज enclosed, this sentence is enclosed into the start tag and the end tag. तो हमने देखा कि HTML एलिमेंट और HTML एलिमेंट की एग्जांपल हमने देखी पैराग्राफ, जो कि स्टार्ट और एंड के साथ डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर आपने डिफाइन किया हुआ है एक पैराग्राफ को। फर्दर देखते हैं HTML एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय HTML एलिमेंट्स एंड HTML एलिमेंट स्टार्ट with a start tag और end with the end tag, और इसको हम also कहते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट टैग से या ओपनिंग टैग से, एंड कर रहे हैं एंड टैग से या क्लोजिंग टैग से। बात एक ही है, मुख्तलिफ नाम हमने असाइन किए हुए हैं। द एलिमेंट कंटेंट इज एवरीथिंग बिटवीन स्टार्ट एंड द एंड टैग। अभी स्टार्ट में रेपिटेशन आती जाएगी, फिर हम एकदम पिकअप करेंगे और हम आगे की तरफ भी चलेंगे। सम HTML एलिमेंट्स हैव एम्प्टी कंटेंट्स, यानी कि आपने अगर कंटेंट्स नहीं दिए हुए लेकिन स्टिल आप यूज कर रहे हैं HTML एलिमेंट, और इसकी मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा। एम्प्टी एलिमेंट्स आर स्टार्टेड, जिसका कि स्टार्ट टैग होता है लेकिन एम्प्टी एलिमेंट का एंड टैग नहीं होता।
बात समझ आई कि जो आप अगर यूज कर रहे हैं टैग, तो स्टार्ट टैग के बाद अगर आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो वो एलिमेंट जिसको आप एंड नहीं कर रहे तो इसका मतलब है वो एक एम्प्टी एलिमेंट है। मोस्ट HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। अब एक बात हमने और की, पहले हमने बात की कि HTML, फिर हमने बात की HTML टैग्स, फिर हमने बात की कि स्टार्ट ऑफ टैग एंड एंड ऑफ टैग, फिर हमने बात की टैग ओपनिंग एंड टैग क्लोजिंग, फिर हमने बात की HTML एलिमेंट की, फिर हमने बात की HTML कंटेंट्स की। अब हम बात कर रहे हैं कि HTML एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी बताई है, ए पी जो है वो एक HTML एलिमेंट है। अब हम एक और बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं HTML, दे माइट हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? खासियतें। आप उर्दू में समझ लें कि उसकी प्रॉपर्टीज कह लें आप, कि आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं उस एलिमेंट्स को, और इसकी भी मैं आपको काफी सारी एग्जांपल्स कराऊंगा। तो अब तक जिन HTML एलिमेंट्स का मैंने जिक्र किया उसमें सिर्फ मैंने आपको पी पैराग्राफ एलिमेंट ही बताया था। एक और HTML एलिमेंट है जिसको कहते हैं ए, और ये जो HTML एलिमेंट है इट कंटेन्स दी एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन करना है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक और HTML एलिमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं BR, स्टैंड्स फॉर ब्रेक। ब्रेक मीन्स लाइन ब्रेक, जहां पे आप चाहते हैं कि कंटेंट्स आते आते अगर आप नई लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं तो वहां पे आप HTML एलिमेंट यूज करेंगे, एंगल ब्रैकेट्स BR। अगर आप देखें तो इसका स्टार्ट टैग है और इसका एंड टैग नहीं है। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उनका सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, क्योंकि ब्रेक जो है एक एम्प्टी एलिमेंट है, ये इसलिए इसका स्टार्ट एलिमेंट है और इसका एंड टैग जो है वो नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ HTML पेज। इसके अंदर आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर भी हम थोड़ी देर बाद आएंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है और ये क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो चीजें आपको नोट करने वाली हैं कि यहाँ पे आपको कुछ फर्दर HTML एलिमेंट्स और HTML टैग्स नजर आ रहे हैं। जिन HTML एलिमेंट्स को आप इसमें देख रहे हैं उसमें है HTML बॉडी पी। अब पी का हमें पता चल चुका है, एक पैराग्राफ है। फिर आप देखेंगे बॉडी दोबारा से आ गया, लेकिन ये फॉरवर्ड स्लैश से है, और फॉरवर्ड स्लैश से जब कोई एलिमेंट आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट क्लोज कर रहा होता है, और फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML ये क्लोज हो रहा है। इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस है। क्या लॉजिकल सीक्वेंस है आपको स्क्रीन पे देख के आइडिया तो हो ही गया होगा, लेकिन आई एडवाइज यू कि जस्ट इस पे कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन दी नेक्स्ट स्लाइड। सो द एग्जाम्पल अबव कंटेन्स 3 HTML एलिमेंट्स। कौन कौन से? HTML 1, then body and then paragraph। ठीक, अब हम इनमें से वन बाय वन पिक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं P एलिमेंट, और ये P एलिमेंट अगर मैं पिछली स्लाइड के ऊपर वापस जाऊं, यू कैन सी के HTML है, उसके अंदर बॉडी है, उसके अंदर P है। तो ये बेसिकली नेस्टेड स्ट्रक्चर है। एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट डिफाइन किया, HTML के अंदर एक और एलिमेंट आया बॉडी, बॉडी के अंदर आया P। फिर हमने पहले P को क्लोज किया, उसके बाद हम बॉडी को क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद हम HTML को क्लोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट एलिमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, विच इज अ P। दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, सो यू कैन हैव एज मेनी पैराग्राफ एज यू लाइक। इनर मोस्ट उसके अंदर या बॉडी के अंदर या पेज के अंदर आप जितने चाहें पैराग्राफ्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। हर पैराग्राफ को P से स्टार्ट कीजिए और बैक स्लैश P से आप एंड करते चले जाइए। सो द एंगल ब्रैकेट विद इन P इज एन HTML P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट। The element has a start tag and it has an end tag, and the element's contents, जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके कंटेंट है दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट आप देखें, बॉडी है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी लिखा हुआ है, उसके अंदर हमारा एलिमेंट है जो कि बजाते खुद एक HTML एलिमेंट है जो P से स्टार्ट होके एंड हो रहा है और फिर बॉडी एंड हो रही है।
So the body element defines the body of the HTML document. The element has a start body and it has an end body. The body element contains an other HTML element. आप देखें कि जो इनरमोस्ट एलिमेंट था पैराग्राफ, उसकी बॉडी जो थी यानी कि उसके जो कंटेंट्स थे वो एक सेंटेंस था, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज या पैराग्राफ. अब जो बॉडी के अंदर उसके कंटेंट्स क्या हैं? बॉडी के जो कंटेंट्स हैं वो HTML एलिमेंट है. बात समझ आई? जो इनरमोस्ट था उसके अंदर आपके कंटेंट्स थे, लेकिन बॉडी के कंटेंट्स क्या है? फर्दर HTML एलिमेंट. तो जरूरी नहीं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही HTML एलिमेंट हो, इसके अंदर बॉडी के अंदर एक से ज्यादा HTML एलिमेंट्स भी आ सकते हैं. उसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे लेटर ऑन. So the body element content is another HTML element which is P element. Next, अब HTML, अगर आपको याद हो फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने 3 एलिमेंट्स की बात की थी. HTML के अंदर बॉडी थी और बॉडी के अंदर पैराग्राफ था. अब HTML देखें. HTML, it contains body contains paragraph, and it's mean that the HTML element define the whole HTML document. जो HTML element है, it defines the whole document. ये एक पेज भी हो सकता है, ये मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं. बेसिकली ये आपका वेब पेज है जो HTML डिफाइन करता है. ये स्टार्ट होता है, ये एंड होता है. फिर द एलिमेंट हैज द स्टार्ट HTML टैग एंड एंड HTML टैग, एंड द कंटेंट्स क्या है इसके? कंटेंट्स इसके हैं पैराग्राफ, नो. फिर बॉडी. अब बॉडी जो है वो इसके कंटेंट्स हैं. HTML जो आपके 2 टैग्स हैं HTML और एंड HTML, इस एलिमेंट के अंदर जो इसके कंटेंट्स हैं वो है बॉडी. बॉडी के कंटेंट्स क्या है? पैराग्राफ. पैराग्राफ के कंटेंट्स क्या है? टेक्स्ट. बात समझ आई? तो सबसे ऊपर HTML that defines your page, पेज के अंदर बॉडी that defines the body, बॉडी के अंदर एलिमेंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, और एलिमेंट के कंटेंट जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट होगा. और ये सारी की सारी चीजें आपका वेब पेज डिफाइन करने के लिए है कि आपके वेब पेज के कंटेंट्स क्या हैं. ब्राउजर जो है इसको कैसे हैंडल करे, सर्च इंजन जो है इसको कैसे हैंडल करे, अभी हम इसके ऊपर थोड़ी देर में फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे. सो कुछ टिप्स. डोंट फॉरगेट द एंड टैग, ऑल्दो समटाइम्स इफ यू फॉरगेट टू यूज एंड टैग, खास तौर पे इनर मोस्ट का, तो इट माइट वर्क, बट देर इज अ चांस के ब्राउजर जो है डेट माइट गिव यू एन एरर मैसेज. जो ओल्डर वर्जन ऑफ ब्राउजर्स हैं वो ज़्यादा एरर मैसेज नहीं देते थे, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है और स्पेशली जो HTML के लेटेस्ट वर्जन्स आ रहे हैं, टॉक अबाउट इट इन फ्यू मिनट्स, वो दे विल प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड और एरर इफ यू फॉरगेट द एंड टैग. लिहाजा जब तक कि आप एम्प्टी एलिमेंट ना यूज कर रहे हो तब तक आपको एंड टैग जो है उससे माफी नहीं है. यू आर बाउंड टू यूज एंड टैग फॉर एवरी HTML एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर द एम्प्टी HTML एलिमेंट. नेक्स्ट, HTML, इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि आप फॉर एग्जांपल BR जो है वो एक एम्प्टी HTML एलिमेंट है. अब मैं HTML साथ साथ नहीं कहूँगा, है अनकंफर्टेबल मैं भी हो रहा हूँ और आप भी हो रहे होंगे. मैं इसको सिर्फ एलिमेंट कहूँगा, यानी कि एलिमेंट्स मीन HTML एलिमेंट. ओके, तो BR जो है एक एम्प्टी एलिमेंट है और इसका एंड टैग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम इसको यूज करने के लिए आपको कब कहेंगे? अगर हम यूज कर रहे हैं XHTML. ये भी एक HTML का एडवांस वर्जन है और इस एडवांस वर्जन के अंदर हम स्लैश यूज कर सकते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स का, लेकिन ये वाला जो स्लैश है वो आप देखें उसका थोड़ा सा सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट है. उसमें आप देखें BR के बाद ये स्लैश आ रहा है और ये आपके XHTML का सिंटेक्स है और XML का भी है. XML भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको XML का भी सिंटेक्स बताऊंगा.
एक और रिकमेंडेशंस के टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। इसका मतलब है कि अपर केस में पी जो है और लोअर केस पी में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह जो भी आप नेम यूज करेंगे, उसके भी जो वेरिएबल्स यूज करेंगे, उसमें अपर और लोअर में कोई डिफरेंस नहीं है। और कुछ ब्राउजर्स ऐसे हैं जो कि HTML के वर्जन जो हैं जो कि अपर केस यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंडेड जो करंट और फ्यूचर के HTML ब्राउजर्स वो ब्राउजर जो यूज कर रहे हैं, वर्जन्स जो यूज कर रहे हैं ब्राउजर्स, वो जो है वो केस सेंसिटिव होने की उम्मीद है। तो इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप इसको लोअर केस के अंदर यूज करें टैग्स को और एलिमेंट्स को। These are the browsers। अब हमें थोड़ा सा फर्क समझ में आ जाना चाहिए कि HTML बजाते खुद एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोसीजर है, एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को यूज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जो कि ब्राउजर्स इंटरप्रेट करते हैं। यानी कि ये हम सारी की सारी एफर्ट्स किसके लिए करते हैं? ब्राउजर्स के लिए, ताकि ब्राउजर्स जो हैं उनको कन्वीनियंटली हमारे टेक्स्ट को डिकोड कर सके। ब्राउजर्स को पता चल सके कि वेयर इज द हेडिंग, फ्रॉम वेयर द पेज स्टार्ट, एट व्हाट पॉइंट द पेज एंड, व्हाट आर द contents of the page, what are the characteristics या attributes of the element with which it passes the information to the search engine। So जो browsers हैं आपने most commonly देखे होंगे, इसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा है Google Chrome, फिर आपको नजर आ रहा है Internet Explorer, फिर आपको नजर आ रहा है Firefox, और उसके बाद आपको नजर आ रहा है Safari, और लास्ट में है नेटस्केप। नेटस्केप जो है अभी डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन एक ज़माने में नेटस्केप वाज द पायनियर, द फर्स्ट ब्राउज़र, फर्स्ट कमर्शियल ब्राउज़र दैट वाज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, विंडोज़ एनवायरनमेंट में जो ब्राउज़र हमें सबसे पहले मिला वो था हमारा नेटस्केप। So browser does not display the HTML tags but uses the tags to determine how the content of the page is to be presented or displayed to the user। यानी कि ये है instructions to the browsers। HTML tags are instructions to the browsers। समझ में आ गई बात? Contents are meant for the information to the users। Tags are the instructions to the browsers and search engine। अभी सर्च इंजन की भी बात हम करेंगे ठहर के। अब जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, नेस्टेड स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, उसको हम यहाँ पर सम अप करने जा रहे हैं और हम कहते हैं कि जनाब HTML हमारा टॉप मोस्ट स्टार्ट हुआ, और अगर देखें आप उसको गौर से तो इट एंड्स एट द एंड ऑफ द पेज। Next inner loop में there is a body that starts and then it ends। Within the body we have got 3 HTML elements here। पहले H1, अभी इसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, which is basically a heading। Then we have a paragraph and then we have another paragraph। यानी कि इस particular example के अंदर now we have put in 3 elements into the body and then this body जो है is describing the HTML page। ठीक, आगे चले। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि I will also give you the information regarding the document type। Document type declaration helps the browser to display a web page correctly। कैसे? Basically it informs the browser कि which version you are using for your contents। आपके पास चॉइस है कि आप मल्टीपल वर्जन्स यूज कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड में आपको मुख्तलिफ वर्जन्स बताऊंगा। टाइम के साथ साथ न्यू वर्जन्स जो हैं दे कीप ऑन कमिंग एंड दे कीप ऑन इवॉल्विंग। तो बेसिकली देयर आर मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब एंड द ब्राउजर कैन ओनली डिस्प्ले an HTML page 100% correctly if it knows which version of HTML we are using। So we have got HTML5 जिसको का पहली स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप एंड HTML।
अगर आप HTML 4.01 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका फर्स्ट लाइन जो है वो इस तरह की होगी, और अगर आप XHTML यूज़ कर रहे हैं वर्जन 1.0 तो उसकी भी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर आगे लेकर चलें तो there are early days. In 1991 HTML was introduced, 93 में we got HTML plus, 95 में we got HTML 2.0, 97 में we got 3.2, 99 में we got 4.01 और अब 2000 then we had XHTML भी, और अभी मैं आपको बताऊंगा XML भी आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो इससे कैसे मुख्तलिफ है, अभी नहीं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। देन जो लेटेस्ट आपके पास वर्जन है वो है HTML5 जो 2012 में लॉन्च हुआ। तो बेसिकली ब्राउज़र को वी आर नीड टू एजुकेट द ब्राउज़र और नीड टू इन्फॉर्म द ब्राउज़र विच वर्जन वी आर यूजिंग फॉर द presentation of our web page for the public. Now, अब how can we write down this HTML, ये सारे टैग्स वगैरह कैसे यूज़ करने हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ चुके हैं तो यू माइट हैव सीन सम वेरी इंटेलिजेंट एडिटर्स, जिसमें आपने C++ के एडिटर्स देखे हैं और लैंग्वेज के एडिटर्स देखे हैं विच आर वेरी इंटेलिजेंट। सेम गोज विद द HTML एडिटर्स। अगर हम प्रोफेशनल एडिटर्स की बात करें तो वी हैव गॉट एडोब ड्रीमवीवर, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्रेशन वेब, और हमारे पास एक और भी है वो जिसकार्ड कॉफी कप HTML एडिटर। लेकिन आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट वी स्ट्रांगली रिकमेंड टू स्टार्ट विद एट लीस्ट वंस यू शुड बी यूजिंग द नोटपैड। एक दफ़ा आप यूज़ करवेंगे ना, आपको अंदर एक सेंस आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि नेस्टेड कैसे बनता है स्ट्रक्चर, और फिर स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को पुट इन करते हैं। वंस यू आर फेमिलियर विद दैट तो फिर मैं आपसे को सजेस्ट करूंगा कि फिर आप बेशक जो है कोई भी प्रोफेशनल HTML एडिटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दी प्रिपेयरिंग योर HTML पेजेस। और फ्यूचर में मैं कुछ और टेक्नोलॉजीज भी बताऊंगा जिसमें शायद आपको HTML की एडिटिंग से भी जान छूट सकती है आपकी। लेकिन वी नीड टू नो दैट, क्योंकि हमने जब डिकोडिंग करनी होती है, जब हमने कोई एरर को फाइंड आउट करना है, फॉर दैट पर्पस वी मस्ट नो दी HTML। सम बेसिक्स हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट एनी एरर मैसेज। समटाइम इट बिकम्स वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट। So how can you create your first web page? You can use Notepad, और आपको पता है Notepad जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अवेलेबल है। आप स्टार्ट वाले आइकन पे जाएंगे, प्रोग्राम्स को स्टार्ट करेंगे, एक्सेसरीज को ओपन करेंगे, एंड देन यू विल ओपन अप दी Notepad। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर यूजिंग द नोटपैड आप उसके अंदर टाइप इन कर सकते हैं। दिस इज द सैंपल टेक्स्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर, उसको एज इट इज आप टाइप कर सकते हैं। वंस यू टाइप इन दिस पर्टिकुलर सैंपल, देन इसको आप चेक कैसे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है सेव इट इन HTML पेज। आप उसके अंदर सेव एज की ऑप्शन में जाएंगे और इसको you will give it a certain name with the extension. Notepad will suggest you to give an extension to TXT, but you will not accept the default suggestion provided by the Notepad. Rather, you should use the extension, the default name that you are going to give it the name to the first page or name to any page that you will create with the help of Notepad, and then you will use the extension .htm, or you can use the extension name of the page .html file extension. इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि once you open it, then by default it will be open up either in a browser or by you can put it onto the net, and then you can just use the contents के उसको execute कैसे किया है सिस्टम ने, ये मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको। So step 4, HTML पेज इन योर ब्राउजर। आप इसको ओपन करेंगे, दो तरीके हैं। फर्स्ट इज कि आइदर यू ओपन अप अ ब्राउजर, आप नेटस्केप तो अपनी
ये गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर और गोजिला, कोई भी आप फायरफॉक्स आप कोई भी ओपन कर सकते हैं और उसके अंदर फिर आप जाकर अपने उस नोटपैड वाले डॉक्यूमेंट को यू कैन जस्ट open that particular document, will give you the result of the editing you have done that. Or the second choice is you just double click that particular document, it will be automatically linked up and open up with default browsers that you have set up on your computer, and your first page will be picked up by the browser and displayed it on the screen, and most probably it will be displayed like this, my first heading or my first paragraph. ये वाला कोड है. इसमें H1 हेडिंग जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई आपको ठहर के पढ़ाऊंगा. माय फर्स्ट हेडिंग इज द हेडिंग, यही वजह है कि वो प्रोमिनेंट बोर्ड में आ रही है. एंड द पैराग्राफ माय फर्स्ट पैराग्राफ. आप अगर इसको देखें माय फर्स्ट हेडिंग, ऑटोमेटिकली ये हेडिंग को बोल्ड करके और प्रोमिनेंटली इट्स शोइंग द हेडिंग, एंड देन इट्स आल्सो शोइंग द सिंपल टेक्स्ट व्हिच इज माय फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, सो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो उसको आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं. देन वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू शुड बी नोइंग दिस पर्टिकुलर टिप. Sometime you go to a web page and you find something very exciting, very interesting. Then you say, wow, it's something बहुत ज़बरदस्त काम किया है someone. So if you wanted to see कि वो कोड कैसे हुआ है, it's very simple. ये सारे ब्राउज़र आपको फैसिलिटेट करेंगे. Right click on that particular page, and then a drop down window will open up, and out of those choices you will find view page source. If you are using the Internet Explorer, you will find view source, or if you are using a Firefox, it will give you view page source, or similar for different browser. So what it will do, it will open up a window containing HTML code of that particular page, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंटेंट्स इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट होकर नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट इसके जो ओनर है उसने इसको कैसे प्रोग्राम किया है. हाउ डिड द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज हैज यूज्ड द HTML इंस्ट्रक्शन so that the contents are being displayed fascinatedly or fascinating for you. Fascinated भी कोई ऑप्शन नहीं है, fascinating is a noun also. Okay. Now let's talk about the HTML basics. HTML पैराग्राफ्स की मैंने बात की थी, अभी ज़रा क्विकली मैं उसको रिव्यू कर लूँ ताकि मैंने फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें भी बतानी है. HTML documents are divided into paragraphs. Paragraphs are defined with the P tag, P element, जो कि स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं. Then you can have as many paragraph as you want in the body of the page, or in one page, or within the even the nested structure. अभी मैं बताता हूँ कि हम हेडिंग के अंदर भी पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, हम कहीं पे भी इस पैराग्राफ को हम यूज कर सकते हैं. Browsers automatically add an empty line before and after every paragraph. So whenever you declare that these are the contents which should be treated as a paragraph, then the browser automatically insert a blank line before and after that particular paragraph. और ये बात भी मैं आपको कह चुका हूँ कि don't forget to use the end tag for the paragraph. Okay? क्योंकि future versions of HTML will not allow you to skip the end tag. अभी तो शायद काम चल जाए, फ्यूचर में ये काम नहीं चलेगा. HTML headings को मैं बहुत डिटेल से बाद में डिस्कस करूंगा. यहाँ पे मैं इसको सिर्फ जस्ट टच कर रहा हूं so that कि I should be able to use that. HTML headings are defined with H1 to H6. Examples, for example, heading 1, then you have a heading 2, then you have a heading 3. So you can give different headings. और ये different headings जो हैं ये एक hierarchical order के अंदर आएंगी. What does it mean? It's mean कि आप इसको heading H1, अभी मैं आपको बताता हूँ कि highest order है और उसके बाद साथ ये lowest order होता चला जाता है. So HTML headings for heading only, do not use headings to make text big or bold. So what we do, when we are using the
Microsoft Word or Excel or PowerPoint. So what we do, हम उस heading को select करते हैं and then we just make the heading bold or big size. But don't do that, because in that case the browser will not consider it, because it will consider it as an ordinary text. और वो आपका बोल्ड वगैरह ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस अनटिल कि आप उसके लिए प्रॉपर टैगिंग करें. सो हेडिंग के लिए यू शुड यूज दी हेडिंग टैग. क्यों? क्योंकि सर्च इंजन ऑल्सो while searching the contents they want to search using the headings. तो वो क्या करते हैं, अगर तो आपने हेडिंग का टैग यूज किया हुआ है, देन द सर्च इंजन विल प्रॉपरली पिक अप द हेडिंग एंड देन दे यूज दिस हेडिंग इनटू योर टूल बार और इनटू दी, अगर आपने उसको फेवरेट किया हुआ है और समवन उसको सेव करना चाहता है तो उसकी हेडिंग के साथ सेव करेगा. सो सिंस यूजर में स्किम योर पेज बाय इट्स हेडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर. यूजर आपके पेज को ब्राउज करना चाहता है, स्किम करना चाहता है, स्कैन करना चाहता है, तो यूजर जो है, जिस तरह आप किसी किताब को जब आप ब्राउज करते हैं ना, तो आप उसके चैप्टर्स को स्किम करते चले जाते हैं, ब्राउज करते चले जाते हैं, स्कैन करते जाते हैं, सो डैट के आपके किस में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में इंटरेस्ट है. लिहाजा हेडिंग का भी रोल यही है. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी शुड यूज प्रॉपर हेडिंग. H1 heading should be used as main heading followed by H2 headings. जिस तरह हम उसको इंडेंटेशन करते चले जाते हैं ना, मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग. सो 1.0 इज द चैप्टर हेडिंग, देन 1.1, देन 1.1.1, तो ये फिर उसकी सब हेडिंग्स बनती चली जाती हैं. इसी तरह आप यूज कर सकते हैं H1, H2, H3, उसके बाद फिर आप दोबारा H2 यूज करवें, फिर उसमें H3 यूज करवें, H3 के अंदर आप H4 भी यूज कर सकते हैं. कितनी? ये बेसिकली है 6 headings from H1 to H6 tags. H1 defines the most important heading and H6 defines the least important heading. So we have heading H1, then start heading, end heading, then this is a heading H2, then we have a heading H3. So browser automatically adds some empty space or margin before and after each heading. Here I have one example demo for you, जो कुछ अभी तक मैंने आपको कराया. अगर मैं इसकी आपको डेमो दिखाना चाहूँ तो we can see that. ये देखिए डेमो. Now you can see कि हमने जो हेडिंग्स यूज की वो H1, H2, H3, H4, H5, H6 है. फिर आप देखें दोबारा से अहमद मुमताज मुस्तहसन बड़ा आ गया. ये कैसे आ गया? टीचर और CSC कोर्स. If you remember, I've just given you a hint कि अगर हम इसका सोर्स कोड देखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इसका सोर्स कोड यहीं देखूं, तो what I have given you the information और instructed you, क्या करें? पेज में किसी जगह पर जाएं, ओके, राइट क्लिक करें. Once you right click the page, यहाँ पे आप सिलेक्ट करें व्यू सोर्स, क्योंकि एक्सप्लोरर है, यहाँ पर आएगा व्यू सोर्स. व्हेन आई क्लिक व्यू सोर्स तो आप देखें ये विंडो खुल गई. अब अगर मैं इस विंडो को आई वांट टू प्लेस इट फॉर माय कन्वीनियंस, आई जस्ट इसको छोटा कर देते हैं और प्लेस इट देयर. ओके, अब अगर आप इसको इसके साथ टैली करते जाएं, H1 हेडिंग जो है अहमद मुमताज मुस्तहसन माय नेम इज H1 हेडिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये अहमद मुमताज मुस्तहसन H1 हेडिंग के साथ आ रहा है और लेफ्ट साइड पे आप देखें तो इससे बड़ा है. फिर हमने दोबारा वही नाम यूज किया 2 के साथ, तो थोड़ा साइज छोटा हो गया. फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और जो 6 है वो बिल्कुल साइज जो है रिलेटिवली इट्स रिलेटिव. ओके, 6 हेडिंग जो है हैज गॉन स्मॉलर टू स्मॉलेस्ट. फिर दोबारा से अहमद मुमताज मुस्तहसन मैंने इसी पेज के ऊपर फिर H1 कह दिया, यानी कि 2 टॉपिक भी तो आ सकते हैं ना आपके एक पेज के अंदर. सो आपने दोबारा H1 को इसको बिग कर दिया, फिर इसको मैंने कहा दिस इज H2, और यहां पर इसको मैंने कहा दिस इज H3. ओके, और ये हमने कैसे देखा कि हमने उसको राइट क्लिक किया, व्यू सोर्स किया, और इस तरीके से हम किसी भी पेज के कंटेंट्स को डिकोड कर सकते हैं. अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमने कहा कि HTML, और हम ये वर्जन 5 इसका हम यूज कर रहे हैं. फिर हमने 3 एलिमेंट यूज किए. HTML स्टार्ट हो रहा है यहाँ से,
जो मैंने आपको शुरू में कराया था, और ये HTML एंड हो रहा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है बॉडी स्टार्ट हो रही है और बॉडी जो है यहाँ पर जाकर एंड हो रही है। विद इन द बॉडी मैंने कोई पैराग्राफ यूज नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ हेडिंग्स यूज की, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेडिंग्स यूज की, डिफरेंट साइज की। तो मेरे बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं वो 6 हेडिंग्स हैं। These are the elements that constitute the body of the page, and this body constitute my page. Okay, so let's close it down. इसको close down करते हैं, इसको यहाँ से close down करते हैं, and I am back to my page. Next, HTML attributes. मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके जो एलिमेंट्स हैं दे कैन हैव एट्रीब्यूट्स, और मैंने आपको ये भी बताया कि एट्रीब्यूट्स मींस प्रॉपर्टी। सो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। These elements, every element can have attributes, so attribute provide additional information about an element, और they are always specified, like जिस तरह टैग होता है, स्टार्ट टैग के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स को, और इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नेम और वैल्यू। नेम स्लैश वैल्यू नहीं, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि इट हैज गॉट 2 कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड नेम एंड देन द प्रॉपर्टी असाइन टू दैट पर्टिकुलर नेम। नाम भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और उसके बाद जनाब उस नाम के साथ आप उसका काम, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफाइन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। So HTML links are defined with a tag. अब A is a predefined tag, आप इसको यूज कर सकते हैं, और that contains the address, यानी कि इसके एट्रीब्यूट क्या है? href, HTML reference attribute. That attribute is a valid address. तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने कहा हुआ है कि A, which is an address element, and this address element has a name. Name क्या है? HTML ref reference, which is equal to http www.comsets.edu.pk, और this represents the Comsets website. तो यहाँ से हमने इसके एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए। We need to enclose the attributes into quotes. यहाँ पे अगर आप देखें हमने डबल कोट यूज किया हुआ है, और इस डबल कोट्स की मदद से हमने इस एट्रीब्यूट को डिफाइन किया हुआ है। We can use a double quotes or we can use a single quote. Double quotes are most commonly used, but single quotes are also used. लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको सिंगल कोट लाजमी यूज करना है, वो क्या है कि अगर आप एट्रीब्यूट्स के अंदर आप मजीद एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, या आप इस तरीके से एट्रीब्यूटिंग कोट्स के अंदर कोट अगर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स CIIT, तो मैंने अब CIIT को आई वॉन्टेड टू इनक्लोज इट इनटू डबल कोट्स। सो इस डबल कोट्स को जब मैंने एट्रीब्यूट के अंदर यूज करना है, यानी कि कोट्स के अंदर कोट्स यूज करने हैं, तो फिर मुझे आउटर मोस्ट के लिए मुझे सिंगल कोट यूज करना है। सो अगर आप देखें कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आउटर मोस्ट कोट जो है वो सिंगल कोट है, और CIIT इज इनक्लोज इन दी डबल कोट। फिर एक बात और कि लोअर केस की रिकमेंडेशंस है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम W3C recommends the lower case attributes because the values in their HTML4 recommendations में उन्होंने हमें कहा है, रिकमेंडेशंस दी है कि आप लोअर केस यूज करें, क्योंकि एट्रीब्यूट नेम्स मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो अपर और लोअर में इनसेंसिटिव है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप लोअर यूज करें। न्यूअर वर्जन ऑफ HTML या XHTML विल डिमांड लोअर केस एट्रीब्यूट्स। अच्छा जी, अब हम इस लिंक के ऊपर दोबारा आते हैं कि हम लिंक यूज कर रहे हैं। HTML एलिमेंट लिंक एलिमेंट है विच इज एन एड्रेस एट्रीब्यूट, और हमने कहा कि जनाब ये कंटेन करता है comsets.edu.pk यूनिवर्सिटी वेबसाइट। नाउ इट कंटेन्स 2 पार्ट्स। कौन कौन से? पहले है हमारे पास डबल कोट्स के अंदर जिसको हमने कहा http comsets.edu.pk. This is the value that has been assigned to university website.
यानी कि जो यूनिवर्सिटी आपके पेज के ऊपर लिखा हुआ आएगा वो लिखा हुआ आएगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और इस यूनिवर्सिटी वेबसाइट को जो आपने वैल्यू असाइन की है वो हमने असाइन की है विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस एट्रीब्यूट, विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस एलिमेंट। ठीक है, ये एक लिंक एलिमेंट है जिसमें हमने नेम स्लैश वैल्यू यूज करके हमने इसको वैल्यूज बता दी है, एजुकेट कर दिया है कि इसकी ये वैल्यू है। इफ यू वांट टू सी इट, आई हैव अनदर डेमो फॉर यू, इसी बात को शो करने के लिए, और इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है जो कि डेमो के नाम से है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखिए कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट आ गई। अब हम वही काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको हम व्यू करते हैं सोर्स। तो ये जनाब हमारा सोर्स जो है आ गया। इसका साइज विंडो का मैं छोटा करूं सो डैट कि हम इसको साइड बाय साइड मेंटेन कर सकें। नाउ लुक एट दिस इज अ यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जब हम इसके ऊपर लेकर जाते हैं ना लिंक के ऊपर, तो जैसे ये भी बाद में बताऊंगा आपको, जैसे हम लिंक के ऊपर लेकर जाते हैं ना तो हाथ का निशान, हैंड्स मार्क बन जाता है। ये यहाँ पे एरो है, जैसे ये रहेगा इसका मतलब है कि ये एक यूआरएल है। ठीक है, और इसके साथ अटैच वैल्यू क्या है? अगर हमने इसका कोड देखा तो हमने देखा कि हमने यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये चीज है यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक, ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट अंडरलाइन के साथ यहां पर आ रही है, नजर आया? ओके, अब इसको असाइन वैल्यू ये है, यानी कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या खुलना चाहिए? comsets.edu.pk यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जानी चाहिए। लेट्स सी, अगर हम इसे क्लिक करते हैं, वी आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, वेरी नाइस, और वी कैन सी दैट कि कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि हमारी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट के ऊपर हम पहुंच गए, हम वेबसाइट डायरेक्ट क्लिक हो गई। ठीक, समझ में आया? चलें जी, वापस चलते हैं, इसको हम बंद करते हैं, जस्ट क्लोज इट डाउन, लेट्स क्लोज इट डाउन, इट ऑल्सो closed down, and I am back to my lecture slide. The link address is specified in the href attributes, जो मैंने आपको दिखाया कि comsets.edu.pk was assigned in the href attribute. ठीक है जी, आगे चलें। HTML images, अब हम HTML images की बात करते हैं। HTML images are defined with the img टैग, इसका ये कीवर्ड है img, मीन्स इमेज टैग। इमेजेस कैन बी इंसर्टेड इन HTML डॉक्यूमेंट। आजकल क्या, जब भी कोई वेब पेज है, इफ इट डज नॉट कंटेन moving objects, or does not contain pictures, does not contain photographs, graphics, then the people don't spend too much time. Rather, they just quickly skim or skip that particular, not skim, skip that particular page. So how to insert images into an HTML document, that we need to understand. और ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें दो चीजों का आपने देखना है, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम अनदर फोल्डर और अनदर सर्वर। दो चीजें हमने अब देखनी है, एक तो इमेज कैसे इंसर्ट करना है, और फिर ये कि ये जनाब उस फोल्डर से या किसी दूसरे सर्वर से कैसे लेकर आना है। जवाब बड़ा आसान है कि वी कैन यूज टैग img along with src, यानी कि हमें यूज करना है जनाब इमेज और सोर्स टैग। सो द इमेज टैग एंड द सोर्स टैग मीन्स इमेज और सोर्स, हम इनको एट्रीब्यूट्स असाइन करेंगे। इमेज से इमेज असाइन करेंगे और सोर्स से हम बताएंगे कि ये आपका इमेज जो है ये ब्राउजर को मिलेगा कहाँ पर। वी नीड टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द फोल्डर, द पाथ ऑफ द फोल्डर, or we need to provide the address of the server that might contain that particular image. So in HTML, images are defined with the img tag. Img tag is an empty, that is no closing tag. एक मैंने आपको empty tag की एग्जांपल दी थी, क्या थी? BR, break, न्यू लाइन पे जाने के लिए। अब जो इमेज है ये भी empty tag कहलाता है, empty element कहलाता है, क्योंकि इसकी भी क्लोज टैग इसका नहीं है। हमने सिर्फ इसके अंदर इमेज ही को डालना है, ये स्टार्ट होगा और बस, दैट्स इट।
To display an image on a page, we need to use the source attribute. और मैंने आपको बताया why we need the source attribute. We need the source attribute to specify कि for the location from where we can pick up the image or the browser should pick up the image. The value of the source attribute is the URL of the image we want to display. ये जो URL है ये एक सर्वर का एड्रेस भी हो सकता है और ये URL जो है आपके डिस्क के ऊपर जो आपके फोल्डर का पाथ जो है वो भी हो सकता है. So the syntax for defining an image is image, img, src, आप बताते हैं वो उसका पाथ या URL. उसके बाद there is another one which is called art is equal to some text. art जो है ये भी एक attribute है और मैं इसको भी थोड़ी देर में explain करता हूँ. The URL points to a location where the image is stored. An image name monogram.gif located in the image directory. Suppose हमने कहा कि ComSet का monogram है. अगर ComSets का जो मोनोग्राम है वो सपोज पड़ा हुआ है vcomsets.edu.pk / उसकी सब डोमेन इमेजेस एक फोल्डर और उसके अंदर monogram.gif पड़ा हुआ है, तो हम क्या इसको मेंशन करेंगे, हम बताएंगे कि monogram.gif लोकेटेड इन दी इमेजेस डायरेक्टरी. सो हम पहले वो उसका URL देंगे और URL क्या है, www.comsets.edu.pk/images/monogram.gif. पूरा कंप्लीट उसका नाम जो कि टैग हो रहा है उसके URL के साथ और उसके पाथ के साथ. The browser displays the image where the img tag occurs in the document. If we put an image tag between two paragraphs, the browser shows the first page, then the image and then the second paragraph. यानी कि अगर आपने एक पैराग्राफ के अंदर अगर इसको इमेज टैग को यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दी फ्रॉम द पोजीशन वेयर यू हैव इंसर्टेड द इमेज, पैराग्राफ पहले आएगा वो पार्ट जहाँ एट द पोजीशन वेयर यू हैव इंसर्टेड द इमेज. सो आफ्टर डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ जहां तक कि आपने इमेज दिया हुआ है, then it will display an empty line, then it will display the image and then it will display the remaining part of the paragraph. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इमेज के स्टार्ट और एंड के ऊपर एक ब्लैक लाइन आ जाएगी और उसके बाद उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर वो पैराग्राफ ऊपर भी होगा टेक्स्ट और उसके नीचे भी टेक्स्ट होगा और पैराग्राफ के दरमियान में वो इमेज है. अब वो इमेज दरमियान में कैसे आएगा, उसके लिए आप फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन पिछले स्क्रीन के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट अनदर एट्रीब्यूट जो कि नजर आया था हमें, कहाँ पर नजर आया था भाई, alt के नाम से, alt के नाम से, alt टैग कहाँ था भाई, लेट मी सी, यस, इमेज सोर्स इज इक्वल टू URL, alt इज इक्वल टू सम टेक्स्ट. अब ये ALT क्या है, ALT stands for alternate attribute. The required alternate attribute or ALT attribute specifies an alternate text for the image. If the image cannot be displayed, there could be number of reasons. कौन से, your connection is very slow, image load नहीं हो पा रहा, an error in the source attribute, आपने पाथ ही गलत दे दिया, वो image जो है that does not exist. If image does not exist तो ब्राउजर कहाँ से ढूंढ के लाएगा, ओके. और थर्ड वन कि यूजर इज यूजिंग द पेज इन द रीड मोड, यूजर जो है वो उसने अपने टेक्स्ट नोटबुक के अंदर रीड मोड के अंदर आया हुआ है, वो किसी भी किस्म के इमेज को अफोर्ड नहीं कर सकता डाउनलोड करें, तो वो रीड मोड के अंदर आपके पेज को स्किम कर रहा है, स्कैन कर रहा है, तो उसकी ऐसी सूरत में image will not be displayed. So the value of the alternate attribute is author defined. अब ऑथर जो है वहाँ पे टेक्स्ट भी डिस्प्ले कर सकता है और व्हाट यू कैन डू बीइंग एन ऑथर, आप वहाँ पे थंबनेल भी एक्सप्लेन कर पुट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या आप कोई स्माइली फेस सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, वट एवर is your choice. So the alternate attribute provides an alternate information for an image and that is very important. और इसकी वजह भी ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे ब्रेक नजर आएगा पेज के ऊपर. Then height and width of the image.
The height and width attributes are used to specify the height and width of the image. It is a good practice to specify both the height and width attribute of the image. If these attributes are not set, the space required for the image is not guaranteed. It's mean that if the space is not reserved, then it depends upon the browser. However, without these attributes, the browser does not know the size of the image. With the result, the page layout will change during the loading. स्टार्ट किसी और लेआउट से हुआ था, फिर एकदम लेआउट चेंज हो जाएगा और वो फिर आपको क्या देखने वाले को अनकंफर्टेबल महसूस होगा. द एट्रीब्यूट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन पिक्सेल्स बाय डिफॉल्ट. सो अब हम इसके अंदर फर्दर एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं. पहले हमने ऐड किया सोर्स जिसमें URL थी smiley.gif, फिर alternate हमने कहा कि अगर इमेज ना मिले then what should we do? We put smile face, then we provide the attributes width 42 pixels, height 42 pixels. ठीक है, आसान है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ. So this is a demo. Here I've got a very interesting, a fascinating picture. मेरे पास एक पिक्चर है रेनी डे की. अगर आप यहाँ पे देखेंगे एट्रीब्यूट से मैं वहीं पे दिखाता हूँ आपको सोर्स के साथ. So let us see के how should it give you. Okay, this is a picture. Rainy day. You can see it's raining cats and dog. इमेज के अंदर आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है. तो इसका सोर्स तो देखें कैसे मैंने आपके लिए पेज बनाया. सोर्स, अब इस सोर्स को थोड़ा छोटा करते हैं सो डैट के हमें पिक्चर भी एंजॉय करें और जनाब ये भी एंजॉय करें. ठीक हो गया भाई. ओके, अब देखें इसके अंदर इस पेज पे क्या नजर आ रहा है. सबसे पहले जनाब आपको बॉडी में पैराग्राफ नजर आ रहा है और पैराग्राफ के अंदर मैंने P यूज किया है. P के अंदर मैंने B भी यूज कर दिया. आई एम सॉरी, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये B मैंने यूज किया है कि ये पैराग्राफ को जरा बोल्ड हो जाए, ये रेनी डे जरा बोल्ड में नजर आए आपको. ओके, then image source raining.gif is the name of the image. Alternate w3school.com. ये कहाँ से आ गया? ये ऐसे आया कि these examples samples I have picked up w3 schools idea contents I have picked up from there, लेकिन मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज किया आपके लिए so that कि आपको ये अपना अपना टेक्स्ट लगे, पराया ना लगे. ठीक है भाई. उसके बाद विड्थ थी इसकी 400, हाइट थी 200, बॉडी एंड. अच्छा, उसके बाद नहीं, एक पैराग्राफ मैंने और यूज किया नीचे, सेकंड पैराग्राफ बॉडी के अंदर. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. धुआंधार बारिश हो रही है, उसको कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. और उसको भी मैंने बोर्ड में एक्सप्लेन किया. और इस तरीके से ये जो इमेज है आपको, ये जिफ के अंदर है इसलिए आपको थोड़ी सी इसमें एनिमेशन नजर आ रही है. जिफ के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो आपको इल्यूजन इस किस्म का दे सकता है. ठीक है भाई, है ना इंटरेस्टिंग, मजे की चीज है. अब आप अपने पेज पे इमेज भी डाल सकते हैं. आप अपनी इमेज को एनिमेटेड इमेज बना लें. नहीं, डोंट डू दैट, लोग समझेंगे कार्टून है. ओके, लेट्स क्लोज इट डाउन. आगे चलते हैं. टिप्स. इफ एन HTML फाइल कंटेन्स एन इमेज 10 इमेजेस, अगर 10 इमेजेस हो तो 11 फाइल्स आर रिक्वायर्ड. हाँ, 11वीं कहां से आ गई भाई, ये अब आपने जवाब देना है. ठीक है. लोडिंग इमेजेस टेक्स टाइम. 11 फाइलें, 10 तो इमेज और 11वां HTML पेज जो मैंने भी आपको दिखाया. अभी एक मैंने आपको इमेज दिखाया ना, तो उसके साथ एक आपको फाइल भी दिखाई. तो एक इमेज के लिए 2 फाइल्स. सो एक तो उसको टेक्स्ट लोड करना है, पेज लोड करना है और फिर उसको हर इमेज को लोड करना है. सो यूज इमेज वेरी केयरफुली. उसके साइज को देखें. जिफ तो मेरे पास लग्जरी थी ना यहाँ पर, क्योंकि आई एम जस्ट यूजिंग इट ऑन माय लोकल मशीन, यहीं पे पड़ा हुआ है, कहीं से डाउनलोड नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जिफ इमेज जो है ना वो दिखा दिया. When a web page is loaded, the browser gets the image from a web server and insert it into the page. Therefore, make sure that the images are available in the same location in relation to the web page. Otherwise, the visitor will get a broken icon.
अगर उसको पाथ नहीं मिलेगा, इमेज नहीं मिलेगा, तो फिर उसको ब्रोकन आइकन नजर आएगा, विच इज विद इमेज नॉट फाउंड, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. So we have seen image tag के साथ मैंने आपको image करा दिया, that defines an image. Then we have a map. Time मिला तो I will be covering map also. Area, ये भी area है image के अंदर. अगर आप चाहते हैं कि इस image के ऊपर भी अगर clickable area हो जिसकी मदद से आप किसी और location में click to enter कर सकें further location, तो वो भी आप कर सकते हैं. लेकिन अगर I'm just giving you a overview. These two lectures, part 1 and part 2, are the overview of the HTML, or this should be sufficient to cover the HTML. ठीक है, but don't expect कि मैं ये 100% cover कर दूंगा. I'm just giving you a taste कि HTML का टेस्ट क्या है, और sufficient knowledge कि using this knowledge आप फिर उसमें wonders कर सकते हैं further. Because I am not just teaching you just one language. अभी मैंने आपको XML भी पढ़ाना है, JavaScript भी कराने हैं, और PHP भी करानी है. So let's move forward. HTML lines. आप चाहते हैं कि जनाब एक लाइन भी लगी हुई आ जाए तो उसके लिए बड़ा आसान है. आप हॉरिजेंटल लाइन यूज कर सकते हैं. HR टैग क्रिएट्स अ हॉरिजेंटल लाइन HTML डॉक्यूमेंट. सो आप हर पैराग्राफ के बाद आप एक एक लाइन जो है ना बड़े आराम से यूज कर सकते हैं. सो आई कैन जस्ट गो फर्दर क्विकली. लाइन ब्रेक्स BR के साथ आप नेक्स्ट उसके ऊपर आ सकते हैं बड़ी आसानी से. सो दिस इज ए पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक. ठीक है, इसके अगर मैं आउटपुट देते था तो अच्छा था, लेकिन आप खुद इसको कट पेस्ट करके इसको आप चला के देखें ये कैसा आएगा. इस तरह आएगा. दिस इज अगली लाइन में ए पैरा, तीसरी लाइन में ग्राफ विद लाइन ब्रेक्स. ठीक है, ये आप ट्राई कर लीजिएगा खुद ही. HTML output. We cannot be sure how HTML will display over web page. Large or small screens and resized windows will create different results. ठीक है, क्यों? क्योंकि it's not necessary that the people will open up your page on desktop or on a laptop. They might open it up in their notebook, or even they might open it up on a smartphone screen. 5 इंच की स्क्रीन के ऊपर आपने उसको ओपन करना है, आपने नहीं, ब्राउजर ने ओपन करना है. So HTML we cannot change the output by adding extra spaces or extra lines in our HTML document. ब्राउजर जो है वो उसको खुद हैंडल करता है. आप अगर चाहें कि मल्टीपल लाइंस दे दें ताकि एक गैप आ जाए, खूबसूरत हो जाए, ऐसे गैप नहीं आएगा. गैप देने के लिए आपको लाइन ब्रेक्स देने पड़ेंगे उतने. ठीक है ना, खाली स्पेस देने से, क्योंकि जिस तरह C लैंग्वेज में होता है ऑल द वाइट स्पेसेस आर कंप्यूटेड टू सिंगल वाइट स्पेस. तो जितनी मर्जी आप स्पेसेस यूज करवें, लाइंस यूज करवें, दे आर कंप्यूटेड टू सिंगल लाइन एंड सिंगल स्पेस. सॉल्यूशन, अगर आपने ये सब कुछ करना है देन वी शुड यूज फॉर्मेटिंग टैग्स. थोड़ा सा क्विक हो जाते हैं. HTML फॉर्मेटिंग टैग्स. HTML uses tags like B, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. B for bold and I for formatting output, I for italic text. These are called HTML formatting tags. So B और I are defined bold or italic text. इसके साथ साथ what we can do, we can put strong or EM. EM means emphasize. Means that you want the text to be rendered in a way that the user understand as an important text. So today all the browsers render strong as bold and emphasize as italic. लेकिन जरूरी नहीं, फ्यूचर में हो सकता है ब्राउज़र जो है वो स्ट्रॉन्ग को रेड कलर दे दें और एम्फेसाइज को वायलेट कलर दे दें, कोई ग्रीन कलर दे दें. सो इट डिपेंड्स अपॉन ब्राउज़र्स. लेकिन इफ़ यू हैव यूज द स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसाइज टैग, दे विल बी शोन स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज्ड whatever the criteria they will use. So यहाँ पे हमने दिया हुआ दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस इज इटैलिक, दिस इज कंप्यूटर आउटपुट, दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज सुपरस्क्रिप्ट. क्विकली इसको भी हम देख लेते हैं डेमो के अंदर. आई हैव स्टिल सम टाइम, आई कैन गो फॉरवर्ड. ओके, ठीक है भाई. अब इसका कोड देखते हैं. कैसे देखते हैं? व्यू स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं.
और जनाब इसको यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक हो गया। सो फर्स्ट लाइन नंबर 5 पे देखिए, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, मैंने बी यूज किया। लाइन नंबर 6 पे देखिए, स्ट्रॉन्ग, चलिए मैं भी दिखाता जाता हूँ, अभी तो मेरे पास है ये लाइन नंबर 5 है, इसमें आपने नोट किया, इसमें हमने यूज किया हुआ है ये बी, ये बी, ठीक है ना, ये बी एंड हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बोल्ड है। फिर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग एंड हुआ, तो ये आप देखें सेकंड लाइन जो है ना, ये दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। फिर ये एक नॉर्मल है, ये एम्फसाइज्ड, अच्छा एम्फसाइज को ये इटैलिक में कन्वर्ट कर देता है। आप देखें दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड, तो एम्फसाइज मीन कि इसको इसने इटैलिक में कन्वर्ट कर दिया। दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक, ये भी इटैलिक में ही आ गया, ठीक हो गया। दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, यहाँ पे हमने स्मॉल यूज किया, ये हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, आप सारी चीजें कवर हो गई। दिस इज सबस्क्रिप्ट, ये देखिए आप सबस्क्रिप्ट आ रहा है ना, ये सबस्क्रिप्ट, और ये सुपरस्क्रिप्ट आ गया, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक हो गया। और वो हमारा कहाँ गया, सोर्स कोड, दोबारा खोल देते हैं, सोर्स कोड जो है ये रहा, ठीक है। ये दिस वन इज सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट आप देख रहे हैं कि ये सबस्क्रिप्ट में आ रहा है छोटा छोटा, एंड सुपरस्क्रिप्ट अब ये ऊपर चला गया, सुपरस्क्रिप्ट। आपने विद इन द लाइन भी आप यूज कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स को, विद इन द लाइन, लाइन मीन्स पैराग्राफ, हमारे ये जो लाइन होती है वो पैराग्राफ होता है, और एक से ज्यादा अगर साइज इसका बड़ा हो जाए तो पूरे का पूरा पैराग्राफ भी यूज हो जाता है, लेकिन जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज वी हैव केप्ट इट सिंपल वन। Okay, let's go back by closing it as well as closing the output window. We come back to our presentation. जी जनाब, आपने बोर्ड भी देख लिया, you have seen emphasized text, italic text, small, strong, subs, और जनाब सुपरस्क्रिप्टेड भी, इंसर्ट एंड डिलीट भी है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये आपके अपने भी ये है कि जो नया टेक्स्ट आपने ऐड किया वो इंसर्ट में डाल दें ताकि पता चल जाए। डिलीट के केस में अगर आप कोई समझते हैं कि ऑब्सोलीट हो गया, बजाय डिलीट करने के डिलीट एट्रीब्यूट आप यूज कर लीजिए, तो उसका क्या होगा कि उसके ऊपर वो सिर्फ एक क्रॉस कर देगा, मीन्स कि ये डेटा जो है डिलीटेड है, और डेटा नजर आ रहा होगा, येट इट विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड कि वो जो उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन लगी हुई होती, क्रॉस लगा हुआ आ जाता है उसके ऊपर। ओके, HTML comments. I think 5 minutes more to just quickly wrap it up. HTML comments tag, comments can be used a sign of exclamation or per start and end, and use it to insert the comments. So we can add the comments to HTML source by using this comment. This is an exclamation, sign of exclamation in the opening tag but not in the closing tab. ये भी एक empty tag है. Comments are not displayed by the browser. तो फिर ये करते किस लिए हैं, यूज किस लिए करते हैं, ये documentation purpose के भी यूज करते हैं. We use these comments for the documentation purposes, for to remember के where we need to put something or when we have done that, when we have added that. तो documentation का वही purpose है जो software के अंदर documentation का purpose है. Okay, comment tags are also used for debugging के लिए भी use हो सकते हैं. If you just want to make certain text that should not be treated or used by the browser, तो आप क्या करें, उसको comment कर दें. तो इस तरीके से आप कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पे वो स्टक हो रहा है आपका पेज, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप कमेंट कर दें और बाकी के पोर्शन को आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको डीकमेंट करके उसकी डिबगिंग कर सकते हैं. इसके अलावा एक मजे का है, कंडीशनल कमेंट है, ये सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर के भी है और इसको हम यूज कर सकते हैं. इफ IE8, इफ इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 देन डू दैट. इफ IE6, इफ इट इज एन इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 देन डू दैट. लेकिन ये सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है. HTML लिंक्स, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, देन वी विल फिनिश द लेक्चर. HTML hyperlinks. Links are used or links are found in nearly all web pages. आपने जब ब्राउज करना होता है ना, सबसे पहले these links were introduced by the
एप्पल मैक के लोगों ने, उन्होंने ये हाइपर टेक्स्ट वाला ये जो था ना कॉन्सेप्ट दिए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो उसकी वजह से इट्स वेरी इजी टू मूव फ्रॉम दी वन पेज टू दी अदर। अब अगर आप पूरी बुक भी पढ़ रहे हैं और अगर आप इफ़ यू आर रीडिंग द बुक ऑन योर नोटबुक मीन्स आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक बुक है उस पर पढ़ रहे हैं, तो यूज़ हाइपर विंग्स। आपने अगर जाना है पेज नंबर 24 के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक्स जो एज ए URL एज ए हाइपर विंग के तौर पर इट्स मेंशन देयर, आप उसे क्लिक करते हैं, आप जंप करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड ऑन दी वेबसाइट की, जहाँ पे आप वेबसाइट के पेज के अंदर ऊपर नीचे भी जंप कर सकते हैं, और वन पेज टू अदर पेज, और फ्रॉम वन वेबसाइट टू अदर वेबसाइट ऑल्सो। सो इन एड्रेस टैग डिफाइंस द हाइपरलिंक। A hyperlink is a word group of words or images that you can click। वो जो मैंने भी आपको दिखाया था, हाथ बन जाता है, मीन्स कि ये लिंक है और अब आप इसकी मदद से आगे जा सकते हैं। फिर इसकी कुछ डिकोडिंग है जो अंडरस्टैंडेबल है। अगर बाय डिफॉल्ट द लिंक्स विल अपीयर इन ऑल ब्राउजर्स, अगर ये लिंक आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में तो इसका मतलब है, और अंडरलाइन तो सारे होते हैं, अनलेस अनटिल मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि नो अंडरलाइन, तो अदरवाइज दिस इज अंडरलाइंड होता है। ब्लू कलर का मतलब है कि यू हैव नॉट येट विजिटेड, और पर्पल अगर लिंक नजर आ रहा है इट्स मीन दैट यू हैव ऑलरेडी विजिटेड दैट लिंक। रेड का मतलब है कि एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड एंड रेड एन एक्टिव लिंक, ठीक है। और विजिटेड लिंक और अनविजिटेड लिंक जो है वो जनाब आपका ब्लू और पर्पल कलर में नजर आता है। कोड फॉर अ लिंक इज सिंपल, और वो मैं हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं, जो मैं आपको दिखा भी चुका हूं। लिंक के साथ टारगेट एट्रीब्यूट्स भी यूज करने हैं। अगर आप यहाँ पे जो टारगेट एट्रीब्यूट्स हैं वो आप देखें कि टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी विंडो है एक नई विंडो में जाकर खुले, ये नए आप उसमें ओपन करना चाहते हैं टैब के अंदर, तो फिर आप उसको यूज करेंगे टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक, और बाय डिफॉल्ट ये न्यू टैब में ही ओपन करता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली उसी टैब के अंदर उसी विंडो में खोलना चाहते हैं या उसी इवन फ्रेम में यूज करना चाहते हैं, तो आई फ्रेम है जो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। गुड, एंड ऑफ HP, नहीं भी HP नहीं है जी, ये HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच। सो we have quickly gone through some basics। अगले लेक्चर में I will just touch some advanced features, जिसमें कि हम मुख्तलिफ HTML के फीचर्स को स्टडी करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।